أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم جماعت ہفتم کی اختتامی میعاد میں مضمون اردو کا نصاب مکمل کر چکے ہیں اور آج کے سبق میں ہم پڑھائے گئے نصاب کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ آج ہم نصاب میں پڑھائے گئے اہم عنوانات کا اعادہ کریں گے، جن کی فہرست درج ذیل ہے۔ واحد جمع، غلط فقرات کی درستی، اعراب، اہم الفاظ کا تلفظ، فعل ماضی کی اقسام، سلیس اردو، تشریح۔ واحد جمع شے ایک ہے یا اس سے زیادہ، اس بات کا تعین کرنے کو تعداد کہتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو صورتیں ہیں، واحد اور جمع۔ تو بچوں اب پڑھتے ہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں۔ اسم کی وہ صورت جس سے کسی چیز کا ایک ہونا معلوم ہو واحد کہلاتی ہے، مثلا لڑکی، کتاب، چابی وغیرہ۔ جمع اسم کی وہ صورت جس سے کسی چیز کا ایک سے زیادہ ہونا معلوم ہو جمع کہلاتی ہے، مثلا لڑکیاں، کتابیں، چابیاں وغیرہ۔ غلط فقرات کی اصلاح۔ صحیح زبان سیکھنے کے لیے زبان کی غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، اور زبان کی غلطیوں سے بچنے کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں جن کو ذہن نشین کر لیجیے۔ تحریر میں املا کی غلطیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں، آپ کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی مواد لکھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ املا کی غلطی سے بچیں، کیونکہ املا کی غلطی سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، جیسا کہ متعلق کو مطلق اور بڑائی کو بڑھائی لکھنا غلط ہے۔ مذکر الفاظ کو مؤنث کے طور پر استعمال کرنا اور مؤنث کو مذکر کے طور پر لکھنا صحیح نہیں ہے، مثلا تار آیا کو تار آئی لکھنا غلط ہے۔ جو فقرے اہل زبان کی روزمرہ بات کے مطابق نہیں ہوتے انہیں غلط سمجھنا چاہیے۔ محاورات اور ضرب الامثال کے الفاظ میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنا درست نہیں، کیونکہ محاورات اور ضرب الامثال ایسے فقرے ہوتے ہیں جن میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے بجائے الٹا چور تھانے دار کو ڈانٹے، یہ غلط ہے، کیونکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ ضرب المثل ہے اور اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لال پیلا ہونا کے بجائے زرد پیلا ہونا، لال پیلا ہونا یہ محاورہ ہے اور اسے بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح زیر، زبر اور پیش کا استعمال کر کے الفاظ کو صحیح تلفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ کسی لفظ کا صحیح تلفظ ظاہر کرنے کے لیے اس لفظ کے حروف پر جو علامات لگائی جاتی ہیں انہیں حرکات یا اعراب کہتے ہیں۔ یہ حرکات تعداد میں 3 ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ زبر یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، زیر یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، پیش یہ علامت یا حرکت حرف کے اوپر لگتی ہے اور واو کی آواز دیتی ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی اقسام بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو، جیسے نعیم آیا، طاہر نے کتاب پڑھی۔
फेल का ताल्लुक ज़माने के साथ होता है और ज़माने 3 हैं: ज़माना मादी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल। ज़माना मादी किसे कहते हैं? जो ज़माना गुजर चुका है इसे ज़माना मादी कहते हैं। जो ज़माना मौजूद है इसे ज़माना हाल कहते हैं और आइंदा आने वाले ज़माने को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि मादी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं और फेल मादी वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो। जैसे नदीम गया, फरीदा खत लिखती थी। अब इन फिक्रात में गया और लिखती थी ये फेल मादी है। इसी तरह से कह सकते हैं खालिदा ने चांद देखा, तो देखा फेल मादी है। माली बाग में गया, गया फेल मादी है। फेल मादी की 6 इकसाम हैं: फेल मादी मुतलक, फेल मादी करीब, फेल मादी बईद, फेल मादी शकिया, फेल मादी इस्तमरारी, फेल मादी तमन्नाई। फेल मादी मुतलक वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना महज गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे, फेल मादी मुतलक कहलाता है। मसलन वहीद ने नज़म पढ़ी, अहमद कराची से आया। अब इन मिसालों में आप देख सकते हैं पढ़ी और आया ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुके हैं, मगर ये मालूम नहीं है कि वो ज़माना दूर का गुजरा हुआ है या करीब का। फेल मादी करीब वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे, फेल मादी करीब कहलाता है। मसलन रशीदा ने नमाज पढ़ी है, इमरान ने सेब खरीदे हैं। अब इन मिसालों में पढ़ी है, खरीदे हैं ये भी ऐसे अफ़ाल हैं जो अगरचे गुजरे हुए ज़माने में हुए, लेकिन इन अफ़ाल के अल्फाज से जाहिर होता है कि ये अफ़ाल करीब के गुजरे हुए ज़माने में हुए हैं। फेल मादी बईद वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे, फेल मादी बईद कहलाता है। मसलन नवीद कुर्सी पर बैठा था, साइमा ने खीर पकाई थी। अब इन मिसालों में भी बैठा था, पकाई थी ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हुए, लेकिन इन अफ़ाल के अल्फाज से जाहिर होता है कि ये अफ़ाल दूर के गुजरे हुए ज़माने में हुए थे। फेल मादी शकिया वो फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक जाहिर हो, फेल मादी शकिया कहलाता है। मसलन खालिद बाजार गया होगा, सईद ने चांद देखा होगा। अब इन मिसालों में गया होगा, देखा होगा ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हुए, लेकिन इनके होने में शक पाया जाता है। जैसा कि खालिद बाजार गया होगा, इस फिक्रे से जाहिर होता है कि खालिद के बाजार जाने में शक है। हो सकता है वो बाजार गया हो और ये भी मुमकिन है कि वो बाजार ना गया हो। फेल मादी इस्तमरारी वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुसलसल और लगातार जाहिर हो, फेल मादी इस्तमरारी कहलाता है। मसलन निसार सुबह सवेरे उठता था, हम हर रोज़ सैर करते थे। इन फिक्रों में उठता था, करते थे ये ऐसे फेल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में बार बार और मुसलसल होते रहे हैं और काम के जारी रहने को जाहिर करते हैं। फेल मादी तमन्नाई
वो फ़ेल जिसमें किसी गुजरे हुए ज़माने में किसी की आरज़ू या शर्त ज़ाहिर की जाए, फ़ेल मादी तमन्नाई कहलाता है। मसलन, काश वो सच बोलता, अगर तारिक लाहौर आता तो चिड़ियाघर देखता। अब इन मिसालों में देखें काश और अगर ऐसे अफ़ाल हैं जिनमें तमन्ना या शर्त पाई जाती है। अब पहले जुमले में देखें काश वो सच बोलता। इस जुमले के फ़ेल से सच की ख्वाहिश का इजहार होता है। और दूसरे जुमले में देखें अगर तारिक लाहौर आता तो चिड़ियाघर देखता। इस जुमले के फ़ेल में शर्त पाई जाती है। सिलीस उर्दू। बुनियादी तौर पर किसी नसर पारे को आसान और सादा अल्फाज में बयान करने को सिलीस उर्दू कहते हैं। जैसा कि हमने निसाब में शामिल सबक हवाई जहाज़ के पैराग्राफ की सिलीस उर्दू की थी। और सिलीस उर्दू करने के लिए मदरजा ज़ेल नकात मद्देनज़र रखने बहुत ज़रूरी है, जिनकी मदद से आप आसानी से दिए गए पैराग्राफ की सिलीस कर सकते हैं। इनमें मुश्किल अल्फाज के मानी याद करना, पैराग्राफ में दिए गए फ़िक्रात को सादा और आसान अल्फाज में लिखना शामिल है। किसी भी नज़्म के अशार की तशरीह करने के लिए तशरीह करने का तरीक़ाकार पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने निसाब में शामिल नज़्म गरीबों के हाजिर तबा के अशार की तशरीह की थी। और तशरीह करने का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले शेर लिखा जाता है, उसके बाद हवाला मतन दिया जाता है जिसमें नज़्म का नाम और शायर का नाम तहरीर किया जाता है। उसके बाद दिए गए अशार की तशरीह की जाती है। हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह करते वक्त दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। हवाला जात भी अशार ही के होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपकी तदरीसी सलाहियतों को उजागर करने में मावन साबित होगा, जिसमें हमने उर्दू के निसाब के अहम उन्वानात का जायज़ा लिया है। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।